Hello students, we are proceeding further. For today I am introducing a new method. It is a screen recorder, and instead of writing down on the paper, I am writing it down, I am typing it on the laptop so that you can better understand and better see it. So you at the end of this video, after watching it, also give me the inputs that whether this is better or the previous method of teaching is better during this COVID problem. Okay. So for today we are going to take methods of calculation of national income, method of calculating national income. Last day we have discussed that we have taken GDP MP, one measure, second one was GDP FC. Same way G is turned to N, so this becomes NDP MP and another become NDP FC. Then this D is turned to GNP MP and same GNP FC, and then this G is turned to NNP MP and NNP FC. Okay, so we have got these four measures: GDP MP, NDP MP, GNP MP and NNP MP. Okay, and when these all are turned to FC, so we have got these are 8 measures. This is 2 and then these 2 and then these 2 and then these 2. Okay, so out of that all, NNPFC, that is, if we write it down here, NNPFC is called, this is called national income. This is called national income. Okay, so if you want to calculate, if you are said that calculate national income, so out of these all you will calculate NNPFC. अगर आपसे ये बोला जाए कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, इन सब में कौन सा कैलकुलेट करेंगे, NNPFC. और बेस्ड ऑन द पास्ट लेक्चर, पास्ट डिस्कशन, आप जानते हैं कि आप इनमें से किसी पे भी हों, सपोज आप NDP MP पे हों और आपको NNPFC पे पहुंचना है तो आपको क्या करना है, ये आप जानते हैं. ओके, नाउ वी स्टार्ट today's topic. It is methods of calculating national income. Okay, so methods of calculating national income, there are three methods. One is, see, production method, or this is also called value added method. Okay, second is, in this line, second is income method, and third is expenditure method. Now only three methods are there: production method, income method and expenditure. So I leave a question for you, why there are three methods. You think over it and try to find out this question, why there are three methods. Okay, so this is a question for you, you will answer it. Now the thing is, whatever method you use, all will give same answer for national income. That is, if you are calculating national income by production method or by value added method or by income method or expenditure method,
all will be same. That is, if we again write it down, you can say that NI from production method will be equal to NI from income method equals to NI from expenditure method. Okay. Again, you also have to think why. This is a fact that if you calculate national income by any of these, then national income from production method or national income from income method or national income from expenditure method will all be equal. Okay, all will be same. So now we start to understand how to calculate national income by these three methods. So very first we take income method. It is easy and you will very easily get it. So very first we take income method. There is no sequencing, essential sequencing. So anything we can take first. So we are taking income method first. Okay. So income method. See, this is very natural. That is, if we are talking about production method, naturally production method will say कि नेशनल इनकम क्या है, जितना भी आपने प्रोड्यूस किया दुनिया अपने कंट्री में एक साल में, उसका समेशन नेशनल इनकम होगा. कौन बोलेगा? ये प्रोडक्शन मेथड बोलेगा कि अगर आपने एक साल में जितना भी प्रोड्यूस किया वो आपकी नेशनल इनकम होगी. सेम वे एक्सपेंडिचर मेथड बोलेगा कि आपने जितना भी इनकम मेथड बोलेगा कि आपने जितना भी इनकम कमाया नेशनल एक साल में कंट्री में, वो आपका नेशनल इनकम होगा. एक साल में आपने जितना भी इनकम कमाया वो आपका नेशनल इनकम होगा. और एक्सपेंडिचर मेथड बोलेगा कि एक कंट्री में सब ने मिलकर जितना भी खर्चा किया वो आपका नेशनल इनकम होगा. ओके. सो अब अगर हम इनकम मेथड पे आएँ तो इनकम मेथड के हिसाब से नेशनल इनकम क्या है? इज सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम्स अर्न earned in a country. Okay, this is intuitive. मतलब जो आप अपने आप से भी समझ सकते हैं अपने कॉमन सेंस से. ये इंट्यूटिव है कि नेशनल इनकम मेथड से नेशनल इनकम का माना होगा, मीनिंग होगा कि ये सम टोटल ऑफ ऑल इनकम्स है. दिस इज सम टोटल ऑफ ऑल इनकम्स. ओके. दिस इज सम टोटल ऑफ ऑल इनकम्स. क्लियर? नाउ अगर ये सम टोटल ऑफ ऑल इनकम्स है तो हम इसको और थोड़ा एक्सपैंड करते हैं. सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स. सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स अर्नड इन ए कंट्री इन ए ईयर इन ए कंट्री. और नेचुरल सी बात है, हम पहले भी देख चुके हैं कि हम टाइम एलिमेंट में इसको बाइंड रखते हैं, तो ये एक साल की कहानी है. क्लियर? नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर इनकम्स, सो कौन कौन से फैक्टर इनकम है? 4 फैक्टर इनकम है. वेजेस, रेंट और इंटरेस्ट और प्रॉफिट. ये 4 इनकम है. ओके. सो 4 इनकम है. दैट इज इनकम, this is income, and 4 factor incomes are there: wages, rent, interest and profit. Okay. So अगर हम इन चारों को जोड़ दें, if we add this all, अगर हम इन चारों को जोड़ दें तो इन चारों का जो समेशन होगा that will be, इन चारों को अगर हम जोड़ें तो इन चारों का जो समेशन होगा that will be national इनकम.
ओके, हमने इन चारों को जोड़ दिया। Clear? So what is national income? It is sum total of all the factor of production: wages, rent, interest, profit. Clear? ये इसका बेस कैलकुलेशन बेस थ्योरी है कि अंडर इनकम मेथड दी national income is summation of all the factor production. Clear? All the factor incomes: wages, rent, interest and profit. इन सबको जोड़ दिया तो ये national income. Clear? Okay. Now formula for calculating national income under income method. इनकम मेथड में अब चार चीज़ें जोड़ेंगे। देखिए, जो आपका वेजेस है ये 3-4 तरह से कैटेगराइज होता है। सी, जो वेजेस है दैट इज कैटेगराइज इन 3 वेज। वेजेस का मतलब है जो आपको पेमेंट मिलता है जब आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं। अगर हम शॉर्ट में कहें कि पेमेंट रिसीव्ड by a person through a job when you are offering your services, when one is selling his services, कौन से सर्विसेज? फैक्टर सर्विसेज, then the payment received is called wages. ये वही है जिसको हम सैलरी बोलते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज, ये जो आपका वेजेस है, दिस वेजेस कैन बी इन कैश एंड इन काइंड. ओके, नाउ व्हाट इज दिस मीन? What is the meaning of this? In cash, you understand. This is okay. What is in kind? In kind is payment received in the form of anything other than cash. कोई भी पेमेंट जो रिसीव हुआ जो कि क्या है, कैश से अलावा है, कैश के अलावा कुछ भी, कैश के अलावा जैसे कुछ भी, हाउस, आपको रहने के लिए घर मिला, और सर्वेंट्स, आपको नौकर चाकर मिल गए, और कार, आपको कोई कार मिली आपके ऑफिस से, और एनीथिंग लाइक दिस. अगर आप किसी दुकान में शॉप कर रहे हैं, दुकान में काम कर रहे हैं, तो उसने आपको राशन दे दी, यानी आपको कोई ग्रॉसरी आइटम दे दिया, राइस दे दिया, और वीट दे दिया, और शुगर दे दी. तो कुछ भी जो आपको पेमेंट के फॉर्म में मिला लेकिन वो कैश नहीं था, दैट इज़ वेजेस इन काइंड. ओके, सो वेजेस के 2 पार्ट हो सकते हैं. वेजेस या तो कैश में मिलेगा, ये वेजेस काइंड में मिलेगा. ठीक, ना अब आपको मैं एक बात समझाता हूँ. थिंग इज, जब आपका एम्प्लॉयर होता है, जो आपका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ये एम्प्लॉयर मतलब जिसने नौकरी दी, आपको पैसा देता है 3 तरह से: सैलरी और वेजेस, जो आप इसको बोलें इन हैंड. ओके, सैलरी और वेजेस इन काइंड, एंड contribution
ऑफ एम्प्लॉयर इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सी, अगर आप अपने पेरेंट्स को पूछें जो कि कहीं जॉब में हैं, तो उनको पूछिए आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे देते हैं, कैसे आपको पेमेंट मिलता है, तो बोलेंगे कुछ पैसा हमें कैश में मिलता है, ओके, लेकिन कुछ पैसा कट जाता है। वो जो पैसा कट जाता है, जो सरकार या एम्प्लॉयर काट लेती है, वो क्यों काटती है कि कल के दिन जब ये लोग बूढ़े हो जाएं तो इनको पेंशन वगैरह दिया जाए, कोई सोशल सिक्योरिटी दिया जाए, उसके लिए वो पैसा सरकार बचा रही है, ओके। तो इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम में दो पार्ट होते हैं। सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम्स हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, सो पे फुल अटेंशन, इसमें क्वेश्चन घूमेगा। जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, इसमें ए पार्ट इज पेड या कॉन्ट्रीब्यूटेड, कॉन्ट्रीब्यूट मतलब जमा करना, कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉय, ओके, एंड द अनदर पार्ट is paid or contributed by employer, ओके। तो जो ये एम्प्लॉई है, इसने अपना जो पार्ट दिया वो अपनी सैलरी से दिया, इसने जो अपना पार्ट दिया वो अपनी सैलरी से दिया, जबकि एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉयर ने अपना पार्ट कहाँ से दिया, अपनी जेब से दिया। एम्प्लॉय ने अपना पार्ट इस वाले से दिया, सैलरी और वेजेस इन हैंड, क्लियर। तो मैं इसको एक दूसरे कलर से लिखता हूँ, दिस इज सैलरी और वेजेस इन हैंड एंड ए पार्ट पेड और कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉय। ये दोनों ही चीज़ें एक जैसी हैं, दीज बोथ आर सेम, ओके, दीज बोथ आर सेम। सेम मीन्स सैलरी और वेजेस इन हैंड का ही एक पार्ट है जो एम्प्लॉई अपने कंट्रीब्यूशन में डालता है, सोशल सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूशन में डालता है। यानी जो एम्प्लॉई की सैलरी हुई वो क्या हुई, टोटल सैलरी, एक जो उसको मिला, दूसरा जो उसको काइंड में मिला, तीसरा जो उसने दे दिया, और चौथा जो सरकार ने उसको उसके सोशल सिक्योरिटी स्कीम में डाला, क्लियर। तो दिस इज फर्स्ट थिंग इज वेजेस इन दिस, इसमें हम यहाँ लिखते हैं दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनआई बेस कॉन्सेप्ट्स। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट्स देख लें। एक चीज़ इसमें यह है कि वेजेस जो कि पहला फैक्टर हमारा है, वेजेस जो हमारा फर्स्ट फैक्टर था, अगर आप देखें दिस इज़ फर्स्ट वेजेस, तो वेजेस कैसा होता है, क्या होता है, दिस इज़ वेजेस, ओके। I expect you are getting it. So this is wages. Okay. Now second thing is operating surplus. एक टर्म आएगा यहाँ पे जिसको हम बोलेंगे operating surplus. Okay. So what is operating surplus? Operating surplus जिसको हम आज के बाद बोलेंगे OS is summation of तीन चीज़ें हमारे पास बची, रेंट, तीन फैक्टर ऑफ ऑप्शन, वेजेस हो गया, वेजेस के बाद रेंट था, उसके बाद था इंटरेस्ट, और उसके बाद था प्रॉफिट, ओके। सो ओएस का मतलब, अगर आपको ओएस दिया हुआ हो तो ओएस का मतलब है रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का समेशन, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का समेशन, दैट इज़, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट यहाँ पे लिखें तो ओ एस इक्वल्स टू, इसको नीचे लिख लेते हैं, ओ एस इक्वल्स टू रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, बाकी पहले इंटरेस्ट लिखते हैं क्योंकि इंटरेस्ट पहले आता है, सो इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ओके। सो व्हाट इज ओ एस? ओ एस इज रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अगर ये तीनों दिए हुए हों क्वेश्चन में अलग अलग,
तो OS नहीं दिया होगा, और अगर OS दिया हुआ है तो ये 3 नहीं दिए होंगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों का समेशन ही OS कहलाता है। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ कभी कभी वो क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए OS भी देगा और रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट भी देगा। तो अगर आपने रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट क्वेश्चन में कैलकुलेशन के लिए ले लिया है तो आप OS नहीं लेंगे। So what is OS? Is operating surplus, that is summation of rent, interest and profit. Okay. Now, important thing. प्रॉफिट जो है, इस प्रॉफिट के 3 टुकड़े। प्रॉफिट का मतलब है, प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट अर्न बाय कॉरपोरेट्स या प्रॉफिट अर्न बाय फर्म्स। फर्म्स मतलब जो बिजनेस फर्म्स हैं। ओके, बिजनेस फर्म्स, कंपनीज वी कैन से। ओके, दिस इज प्रॉफिट अर्न बाय कंपनीज। अब कंपनी क्या करती है? कंपनी क्या करती है? इस प्रॉफिट के 3 टुकड़े करती है। इस प्रॉफिट के 3 हिस्से करती है। क्या? पहला हिस्सा टैक्स की फॉर्म में देती है। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट। क्या है वो 3 पार्ट्स? पहला पार्ट है प्रॉफिट का कि वो टैक्स की फॉर्म में दिया जाता है। टैक्स की फॉर्म में दिया जाता है। दूसरा पार्ट क्या किया जाता है? द सेकेंड पार्ट इज पेड एज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड among shareholders as dividend। ओके, तो दूसरा पार्ट का क्या करती है कंपनी? शेयर होल्डर को बांट देती है। ओके, शेयर होल्डर को बांट देती है। और तीसरा पार्ट क्या करती है? कंपनी अपने पास बचा के रख लेती है। इसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और ये कंपनी अपने पास रखती है। केप्ट बाय कंपनी, CO मीन्स कंपनी, कंपनीज विद देम एज सेविंग्स। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट के 3 टुकड़े आ सकते हैं। एक होगा टैक्स, एक होगा डिविडेंड, और एक होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, तो अगेन जैसे ऑपरेटिंग सरप्लस में हमने देखा, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं लेना है, और अगर टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट नहीं लेना। तो इन दोनों में से कोई एक दिया होगा, और अगर कन्फ्यूजन के लिए दोनों दिए हों तो आपने क्या करना है? प्रॉफिट लेना है, या ये 3 लेने हैं और इनको तीनों को जोड़ के प्रॉफिट लिखना है। समझे? वैसे ही ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट लेना है, या केवल ऑपरेटिंग सरप्लस लेना है। तो दिस इज सेकेंड थिंग इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, ना हो क्या रहा है? देखो, हमने बोला कि इनकम मेथड के हिसाब से नेशनल इनकम क्या है? इनकम्स का सम टोटल है। ओके, तो हमारे पास फैक्टर इनकम्स कौन सी हैं? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो कुछ लोग वेजेस कमाते हैं, कुछ लोग रेंट कमाते हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट कमाते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट कमाते हैं। ओके, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो है तीसरा, थर्ड कॉन्सेप्ट, जो कि है मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम क्या है? इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड and have more than one factor income।
फैक्टर इनकम। कुछ लोगों की फैक्टर इनकम एक से ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी इनकम को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। उनकी इनकम को हम मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। ओके, सो दे आर कॉल्ड, देयर इनकम इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। तो ये 3 तरह की इनकम्स आपको इनकम मेथड में दिखाई पड़ेंगी जब क्वेश्चन आएगा। कौन कौन सी? पहला वेजेस, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा होगा आपका मिक्स्ड इनकम। एक बात और, ये जो वेजेस है इसका दूसरा नाम से भी इसको बोला जा सकता है, और इसका दूसरा नाम होगा कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज या कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। ओके, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। तो ये आप ध्यान रखें, या तो उसको वेजेस के नाम से दिया हुआ होगा या ये दिया हुआ होगा कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ के नाम से, लेकिन कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ के 3 टुकड़े हुए। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या हैं। एक, जो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय है वो वेजेस है, एंड वेजेस इन कैश है, एंड वेजेस इन काइंड है, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम का तो हमने बात कर ली। नाउ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम method. Okay, so wages या compensation to employee COE plus OS operating surplus plus mixed income, इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये मेथड आपको देगा NDPFC। इस मेथड से जो आपको मिलेगा वो है NDPFC, यानी आपने इस मेथड में NI कैलकुलेट करने के लिए कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम को जोड़ दें तो आपको क्या मिलेगा, NDPFC मिलेगा। देन NDPFC से हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड यू नो, यहाँ पे लिखते हैं यू नो नेशनल इनकम मीन्स व्हाट, NNPFC। ओके, ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, जब भी नेशनल इनकम बोला जाएगा वो क्या होगा, वो होगा NNPFC। NI मीन्स NNPFC। तो आपने क्या करना है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम को जोड़ देना तो आपको क्या मिलेगा, NDPFC मिलेगा। लेकिन हमें कहाँ पहुँचना है, हमें NNPFC पहुँचना है। तो NDPFC से NNPFC कैसे पहुँचेंगे, यू सी, पहला वर्ड क्या है N, इसका वन भी N है, यानी दोनों नेट हैं, कोई टाइम डिफरेंस नहीं। इसका दूसरा वर्ड क्या है, D यानी डोमेस्टिक, तो इसमें दूसरा वर्ड क्या है, नेशनल, यानी हमें डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, NDPFC हमारे पास है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए NFIA जोड़ देना है। ओके, तो D जो है ये नेट में कन्वर्ट हो गया, तो NP हो गया, PP सेम है, FC सेम है, तो ये जो आएगा ये आ जाएगा NNPFC, जो कि क्या है, नेशनल इनकम। क्लियर। सो इनकम मेथड से कैलकुलेट करने के लिए क्या है, COE प्लस OS प्लस मिक्स इनकम को जोड़ देंगे। अब मैं इसको थोड़ा इलाबोरेट करके लिखता हूँ।
ओके, COE क्या है? वेजेस इन कैश प्लस इसी फॉर्मूले को इलेबोरेट करके लिखें, वेजेस इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स contribution in social security schemes। ओके, ये हो गया COE, ये तीनों जोड़ दिए, प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, प्लस मिक्स इनकम। ओके, अब ये मिक्स इनकम, इसके साथ जब ये तीनों जोड़ दिए हमने, तो ये जो आया, ये आया NDPFC। ये क्या आया? NDPFC आया। ओके, यानी नेशनल इनकम आपको, इनकम मेथड आपको क्या देता है? NDPFC देता है। लेकिन हमें क्या निकालना है? नेशनल इनकम, जो कि क्या है? NPFC है। तो NDPFC में क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे, वी विल ऐड NFIA। तो जब NFIA जोड़ दिया, तो ये NFIA जुड़ के क्या हो गया? दिस बिकम्स NNPFC। तो ये बन गया NNPFC। ओके, सो इस तरह से हम NDPFC से NNPFC, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल। तो हम नेशनल इनकम तक पहुँच गए। तो इनकम मेथड में क्या करना है? वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, रेंट, इंटरेस्ट, ये और ये सारी चीज़ें जोड़ देंगे। क्लियर? ये तीन चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये तीन चीज़ें कहलाती हैं आपकी, दिस इज वन, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, दिस इज वन थिंग, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। दिस इज कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। ओके, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। और ये दो तीन चीज़ें, ये क्या हैं? ये है, दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, and then it is mixed income. What is this? This is summation of two or more factor incomes. Okay, so this is, और जब इन तीनों को हमने जोड़ दिया तो ये क्या आया? दिस इज NDPFC, जिसमें क्या जोड़ा? NFI है, तो क्या बन गया? NNPFC, जो कि NI है। तो दिस इज इनकम मेथड, दैट वे वी विल get the national income from income method. Now we will take some questions over it. Okay.